سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کورونا وائرس لاہوریوں کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اومیکرون ویرینٹ نے مزید 12 افراد کو لپیٹ میں لے لیا۔ طبی ماہرین نے ویکسینیشن کرانے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ کورونا نے پلٹ کر لاہوریوں پر وار کر دیا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے اومیکرون ویرینٹ سے متاثرہ مزید 12 افراد کی تصدیق کر دی۔ کورونا کے بولک ویرینٹ میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے بتایا کہ پیر کو اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہونے پر کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کا اجلاس ہوا۔ مرض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ کو آپ کو پتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے ایک PCR ٹیسٹنگ ہے، جو کیپیسٹی پنجاب حکومت میں محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر نے کر لی۔ سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ نے دونوں جیب لگائے ہوئے ہیں تو آلدو ایک کانٹیکٹ تو ہو سکتا ہے، بیکاز اس جو ویریئنٹ ہے اس کی ٹرانسمسیبلٹی بہت زیادہ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ویرولنس یا آپ کو بیماری جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی جو سیویرٹی ہے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا اومیکرون ویرینٹ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کی شدت بھی عام وائرس سے زیادہ ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ ویکسینیشن کرانے کے ساتھ ایس او پیز کی پابندی یقینی بنائیں۔ عظمت اوان، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نکاح نامے میں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ نکاح نامے میں دلہا دلہن اور گواہان قادیانی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نکاح نامے میں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کی منظوری دے دی ہے۔ نکاح نامہ میں دلہا دلہن اور گواہان قادیانی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ سرٹیفکیٹ دیے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا۔ نکاح خواہاں کو اس حوالے سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ پر دستخط کروانے کے بعد ہی نکاح پڑھائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی کابینہ کمیٹی کے سامنے رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد یہ باقاعدہ قانون بنا دیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات نے رولز میں ترمیم کی اسمبلی ارسال کی تھی۔ پنجاب حکومت کے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی لاگت میں 96 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیکیداروں کی اضافی بولی سے ہیلتھ انشورنس پروگرام 332 سے 429 ارب روپے تک جا پہنچا۔ پنجاب حکومت نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر 332 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا۔ پروجیکٹ کے PC1 کے مطابق 332 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی تھی۔ تاہم ذرائع نے بتایا کہ بڈ زیادہ ہونے سے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی لاگت میں 96 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے فی خاندان پریمیئر ریٹ میں 4700 روپے کا ریٹ مقرر کیا، جبکہ حکومت نے PC1 میں فی خاندان 3580 روپے ریٹ لگایا تھا۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ فی فیملی پریمیئر ریٹ بڑھانے سے بڈ اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے۔ تعمیراتی میٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات نئے میگا پروجیکٹس میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ LDA نے کیولری گراؤنڈ انڈر پاس اور سمن آباد موڑ انڈر پاس منصوبے کی ابتدائی لاگت میں 18% اضافہ کر دیا ہے۔ مین بولیورڈ سگنل فری کوریڈور منصوبے کیولری گراؤنڈ انڈر پاس کی لاگت 2 ارب 80 کروڑ سے 3 ارب 32 کروڑ 65 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ سمن آباد موڑ انڈر پاس منصوبے کی لاگت 1 ارب 20 کروڑ سے 1 ارب 50 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ کیولری گراؤنڈ منصوبے کی لاگت میں 40 کروڑ 65 لاکھ، سمن آباد موڑ انڈر پاس منصوبے کی لاگت میں 30 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ چیف انجینئر 2 مظہر حسین نے اضافے کا نظر ثانی PC1 PND کو ارسال کر دیا ہے۔ اس سے قبل LDA نے سگیا منصوبے کی لاگت میں بھی اضافہ کیا تھا۔ نظر ثانی شدہ PC1 PND کو ارسال کیا گیا تھا۔ شہر کے مختلف یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے سمیت 4 دالوں کی شدید کمی ہے۔ شہری گھی اور آئل کے ساتھ ساتھ سستی دالوں کے حصول کے لیے بھی خوار ہونے لگے ہیں۔ شہر کے مختلف یوٹیلٹی سٹور پر ایک ہفتے سے آٹے سمیت 4 دالوں کی شدید شارٹیج برقرار ہے۔ یوٹیلٹی سٹور سے ثابت مسر، سفید چنے، دال مونگ اور دال مسور غائب ہے، جبکہ آٹے کی فراہمی بھی ایک ہفتے سے معطل ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر سستی اشیاء کا بس نام ہی باقی رہ گیا۔ حکومت یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ صارفین نے مزید کہا، یوٹیلٹی سٹور پر گھی یا دالیں خریدنے کے لیے دیگر 10 اشیاء لازمی خریدنا پڑتی ہیں۔ حکومت عوام کو سٹور پر ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر جاتے ہیں، دالیں ملتی نہیں، سفید چنے بھی نہیں ملتے، دال مسور بھی نہیں ملتی، مونگ بھی نہیں ملتی، مسر بھی نہیں ملتے، اور یہ انہوں نے 15 دن ہو گئے ہمیں دھکے کھاتے ہوئے۔ تمام دالیں، گھی بھی نایاب ہو چکا ہے۔ ایک عام آدمی جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو گوشت اور ان سے نہیں، انہی سے گزارا کرتے ہیں، دال سبزی سے۔ نہ مونگ کی دال مل رہی ہے، نہ سفید چنے مل رہے ہیں، نہ مسر ہے، نہ مسور ہے، ہر چیز کی کمی ہے، اور کتنے دنوں سے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ سردی بڑھنے پر گیس بھی روٹ گئی۔ نواب پورہ روڈ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے اور حکام کے خلاف نعرے لگائے۔ ادھر شاد باغ میں سوئی گیس کی بندش پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا۔
जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गैस की अदम दस्तयाबी पर नवाबपुरा रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था सारा दिन गैस नहीं आती, उनके इतने वसाइल नहीं कि वो महंगी LPG से घर का किचन चलाएं। हमारे घरों के अंदर सुई गैस नहीं आती, बाहर से खाना खा खा के हम लोग बीमार हो गए हैं और हुकूमत वक्त जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अब इस वक्त उधर शादबाग में सुई गैस की बंदिश पर जमात इस्लामी के तहत एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुक्मरानों से मुतालबा किया कि अगर वो मसाइल हल नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। शहर के मुताबिद इलाके गैस बहरान की जद में हैं, जिसकी वजह से मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। नई ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए मराआत का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। 1800 सीसी से कम हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर की जा रही है। कार डीलर्स का कहना है कि हुकूमत पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए साजगार माहौल बनाए, इससे पहले मुकामी कार इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाए। अगर आवाम को रिलीफ देना है हुकूमत ने, तो इस वक्त जो मौजूदा गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर टैक्सेस कम करते कि गाड़ियों की कीमतें कम होती। गाड़ियों की कीमतें कम होती तो आवाम को रिलीफ मिलता, तो फिर तो आवाम दुआएं देती ना। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी कहाँ पे पाकिस्तान में इस तादाद में है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। माहौल टॉस हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स कम करके 8.5% करने का फैसला किया गया है। 1800 सीसी कम हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर की जा रही है। कार डीलर्स ने मुकामी ऑटो सेक्टर को भी मराहत देने का मुतालबा किया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में छूट दे दीजिए, उसका क्या फायदा, गाड़ी मार्केट में अभी आई नहीं है। जो गाड़ी आई नहीं उसको छूट दे दीजिए, जो खड़ी उन पे छूट दें। गाड़ियाँ कब आएंगी, कैसे आती हैं, क्या होगा, इसका कोई नहीं है, ये बस बातों बातों में ही है। अभी तक किसी चीज़ का कोई हमें इल्म नहीं है। जो लोकल गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्सेस कम करें, उनको रिलीफ दिया जाए। हाइब्रिड गाड़ी पे जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी पे रिलीफ देना है, तो यहाँ पे कितनी वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सारिफ। ऑटो सेक्टर से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए मराहत का ऐलान कुछ आइन है। ताहम हुकूमत पॉलिसियाँ बनाते वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और मकामी ऑटो मार्केट को भी मद्देनजर रखे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। छुट्टियां काम दिखा गईं। बारिश की चंद बूंदों ने भी हैरत अंगेज काम किया। लाहौर में कई हफ्तों बाद माहौलियाती आलूदगी में नुमायां कमी हुई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पर आ गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते बारिशें खुलकर ना बरसीं। महकमा मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते बारिश के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। बागों का शहर नवंबर से स्मोक की लपेट में है। इस दौरान इक्का दुक्का दिनों में ही मौसम बेहतर हुआ। तहम आज सुबह से ही मौसम के मिजाज में बेहतरी नजर आई। अली सुबह धुंध भी नहीं थी, जबकि बाद में स्मोक की शिद्दत में भी नुमाया कमी देखने में आई। दिसंबर के आखिरी दिनों में चमकदार धूप ने सोने पे सुहागा कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि खुश्क मौसम का स्पेल बढ़ने पर स्मोक और धुंध में दोबारा शिद्दत आ सकती है, जबकि शहर में जनवरी के दूसरे हफ्ते में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लेस्को ने एक साल बाद 7.5 लाख सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी कर ली। जून से दिसंबर तक ज़ेरे इल्तिवा जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। लेस्को ने एक साल बाद 7.5 लाख सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी कर ली। जून से दिसंबर तक ज़ेरे इल्तिवा जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। ज़राए ने बताया कि कंपनी के पास सिंगल फेज मीटर न होने की वजह से लाखों कनेक्शन इल्तिवा का शिकार है। ताहम अब खरीदारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद कंपनियों को परचेज ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और आइंदा माह से कंपनियों की जानिब से लेस्को को मीटर्स की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ज़राए ने मजीद बताया कल स्टॉक उठाने से कबल लेस्को के शोबा डिजाइन और मटेरियल इंस्पेक्शन मीटर्स क्वालिटी चेक करेंगे। मीटर्स की क्वालिटी मेयार के मुताबिक होने पर लेस्को स्टॉक उठाना शुरू कर देगी, जिसके बाद मीटर्स को ओरिजिनल स्टोर से फील्ड स्टोर भिजवा दिया जाएगा। बाद अज़ा ऑपरेशन विंग का अमला फील्ड स्टोर से मीटर उठाकर कनेक्शंस की तनसीब करेगा। वफाकी हुकूमत ने कैप्टिव पावर टेक्सटाइल सेक्टर को गैस मशरूत तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया है। सुई नदरन गैस कंपनी 29 दिसंबर से एक हफ्ते के लिए गैस की सप्लाई बहाल करेगी। 4 जनवरी को LNG कार्गो पहुंचने पर गैस सप्लाई में मजीद एक हफ्ते की तौसी हो सकती है।
गैस बहरान की वजह से कैप्टिव पावर टेक्सटाइल सेक्टर को सप्लाई बंद कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक LNG की दरामद में बेहतरी आने की वजह से एक हफ्ते के लिए गैस बहाल की जा रही है, लेकिन इस पर कड़ी शराइत आयद की गई। ज़राए का कहना है कि सनदकारों को एक हल्फनामा भिजवाया जा रहा है जिसके मुताबिक गैस की नई कीमत पर बिलों की अदायगी और अदालतों से केसेस वापस लेने की शर्त लगाई गई। ज़राए के मुताबिक हल्फनामा जमा होने पर एक हफ्ते के लिए गैस बहाल की जाएगी। 4 जनवरी को LNG का दूसरा कार्गो पहुंचने पर इसमें मजीद एक हफ्ते की तौसी हो जाएगी। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। इरिगेशन सेक्टर की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 40 करोड़ 32 से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में रहीम यार खान की ब्रांच की री मॉडलिंग री सेक्शनिंग के लिए 1 अरब 27,54,000 रुपए की मंजूरी दी गई। रहीम यार खान की पक्का लारा सब डिवीजन में मनचन ब्रांच की बहाली के लिए 95 करोड़ 61,03,000 रुपए, दरियाए सिंध के दाएं जानिब हीरो फ्लड बंद से रेख बाग वाला फ्लड बंद तक सैलाबी बंद की तामीर के लिए 1 अरब 41 करोड़ 20,30,000 रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। मियां वाली में पाई खेल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ 23,54,000 रुपए की मंजूरी भी दी गई। मुल्क में इदारा जाती क्रिकेट बहाल होने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। वापडा ने भी अपने क्रिकेटर्स को नौकरी पर भेजने का फैसला कर लिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट से इदारों का किरदार खत्म होने के बाद आखिरी बचने वाली वापडा क्रिकेट टीम भी अमलन खत्म हो गई है। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्रिकेटर्स को ड्यूटियों पर भेजने के साथ साथ तमाम कंपनियों में क्रिकेट ऑपरेशंस बंद करने का फैसला कर लिया है। वापडा के मुख्तलिफ यूनिट्स में मौजूद मुस्तकिल मुलाजमीन को ड्यूटी ज्वाइन करने का कह दिया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन खिलाड़ियों को ड्यूटी करने या फिर घर जाने की ऑप्शन दी गई है। ज़राए के मुताबिक माहाना मुआवजे और वज़ाइफ हासिल करने वाले खिलाड़ियों को फारिग कर दिया गया है। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड के फैसले से स्टार क्रिकेटर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, वहाब रियाज, कामरान अकमल समेत अहम खिलाड़ी मुतासिर होंगे। शहरियों का गाड़ी पर मनपसंद नंबर लगाने का शौक महकमा एक्साइज का कमाई का जरिया बन गया। रवां साल शहरियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ऑनलाइन नीलामियों में करोड़ों के पुरकशिश नंबर खरीद कर गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। महकमा एक्साइज के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल 22 करोड़ 88 लाख रुपए के मनपसंद नंबर खरीदे गए हैं। गाड़ियों की 114, मोटरसाइकिलों की 114 और कमर्शियल गाड़ियों की 6 ऑनलाइन नीलामियां हुई। सबसे ज्यादा गाड़ियों के लिए पुरकशिश नंबर 15 करोड़ 26 लाख रुपए में खरीदे गए। मोटरसाइकिलों की पुरकशिश नीलामियों में 7 करोड़ 43 लाख रुपए में नंबर खरीदे गए। महकमे को कमर्शियल गाड़ियों की नीलामी में 18 लाख रुपए हासिल हुए। डीजी एक्साइज रिजवान शिरवानी का कहना है कि महकमा एक्साइज ने गुज़िश्ता साल से ऑनलाइन नीलामी का सिलसिला शुरू किया है, जिससे आमदन भी बढ़ी है। शहरी सहूलत की वजह से घर बैठे नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएशन 44 प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्की, मुख्तलिफ मेडिकल इदारों में तैनात कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब ने 44 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ग्रेड 19 में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्की दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर सादिया सलीम, डॉक्टर समीना नासिर को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अमारा भट्ट को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैनात किया गया। डॉक्टर महविश हुसैन, डॉक्टर जुल्फिकार अली, डॉक्टर नासिर राना को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर आयशा अकरम, डॉक्टर जियाउर रहमान को यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज तैनात किया गया। डॉक्टर राशिद इकबाल, डॉक्टर तस्कीन जहरा को फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर समीना सईद को अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैनात किया गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी के मुताबिक महकमाना तरक्की अहल सरकारी मुलाजमीन का हक है। हर माह बोर्ड और कंपनियों का इजलास बाकायदगी से मुनक्किद किया जा रहा है। पंजाब पुलिस में तबादलों की लहर, लाहौर के 14 थानों के SHOs तब्दील कर दिए गए, जबकि IG पंजाब ने DSP सतह के 9 अफसरान के तबादले कर दिए। SHOs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर इमरान पाशा को SHO मुगलपुरा और सब इंस्पेक्टर यासिर बशीर को SHO थाना फैसल टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन को शेराकोट, इंस्पेक्टर रजा जाकिर को शादमान और सब इंस्पेक्टर अदील अंजुम को SHO जौहर टाउन तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर खुदा बख्श को रायवंड सिटी, इंस्पेक्टर तारिक परवेज को शुमाली छावनी और इंस्पेक्टर आसिम रफी का SHO डिफेंस C तबादला कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर फहीम इमदाद को मॉडल टाउन, सब इंस्पेक्टर नईमुल्ला को निश्तर कॉलोनी और सब इंस्पेक्टर कादिर अली को SHO हेर तैनात किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को SHO मुस्तफा टाउन और इंस्पेक्टर अजहर नवीद का थाना डिफेंस A तबादला कर दिया गया है।
दूसरी जानिब आईजी पंजाब राव सरदार अली ने 9 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अकीला नियाज नकवी को एसडीओ गार्डन टाउन तैनात कर दिया गया है। डीएसपी मुजफ्फर अकरम को पुलिस लाइंस लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मोहम्मद नईम विर्क एसडीपीओ मनामा और इम्तियाजुर रहमान डीएसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग तैनात किए गए हैं। डीएसपी मुगलपुरा आदिल रशीद की खिदमात एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच के सपोर्ट कर दी गई हैं। एक्साइज टैक्सेशन और एंटी नारकोटिक्स टैक्स कंट्रोल की बड़ी कार्रवाई। 30,000 लीटर शराब से भरा कंटेनर पकड़ लिया गया। चूंग के हवाले करके इंदराजे मुकदमा करके दरख्वास्त दे दी। चूंग से 30,000 लीटर शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया। चूंग के इलाके में इंस्पेक्टर कमर शाह की सरबराही में नाकाबंदी की गई थी। डीजी खान से आने वाले कंटेनर को शेखुपुरा सप्लाई किया जाना था। तलहा नामी शख्स ने कंटेनर शराब की सप्लाई के लिए आसिफ नामी ड्राइवर के जरिए भिजवाया था। एक्साइज हुकाम ने कंटेनर थाना चूंग पुलिस के हवाले करके इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मई में कराने का फैसला किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि अगले साल मई में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन कराने की मनसूबाबंदी की है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि अप्रैल में रमजानुल मुबारक के बायस इलेक्शन नहीं हो सकते। मई में बल्दियाती इलेक्शन के लिए होमवर्क किया जा रहा है। हदबंदियों के रूल्स तैयार किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को हदबंदियां करने का लिख दिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन लाहौर ने डेटा एंट्री के लिए असातिज़ा की बजाय जूनियर क्लर्क्स की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब क्लर्क्स डेटा एंट्री का काम करेंगे, जबकि पहले IT असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई जाती थीं। असातिज़ा की तंजीमों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर तालीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर शफकत महमूद की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहाद और मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का सदर बनने पर शफकत महमूद को मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इत्तेफाक राय से लोकल गवर्नमेंट बिल पास होगा तो इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। परवेज इलाही ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट बिल पर असम्बली की लार्जर कमेटी बना दी गई है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनस इलाही की ज़ेर सदारत नेशनल वाटर पॉलिसी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। मोनस इलाही ने वाटर सेक्टर की अहमियत और मुल्की तरक्की और आवाम की खुशहाली के हुसूल में नेशनल वाटर पॉलिसी के निफाज पर जोर दिया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल ने स्टीयरिंग कमेटी के सितंबर 2021 के पहले इजलास में पेश किए जाने वाले नेशनल वाटर पॉलिसी के निफाज के फ्रेम वर्क पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त का जायजा लिया। चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि तमाम सूबे अपनी आरा यकजा करके अपने सूबाई PND के जरिए मुश्तरका तौर पर भेजें। अभी आपको बताएं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से सिंध के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। सिंध के तंजीमी उमूर समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू की गई। मियां शहबाज शरीफ से खानेवाल से नौ मुंतखब MPA राना सलीम ने भी मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं, होशरुबा महंगाई से अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने हर शोबे को तबाह कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करने वालों में मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, सूबाई सदर सिंध शाह मोहम्मद शाह, सूबाई सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल, राना मशहूद अहमद खान, मलिक अहमद खान, कादिर बख्श बलोच और खालिद शेख भी शामिल थे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्का PP 153 का दौरा। कहते हैं बल्दियाती निज़ाम के मामले पर अवामी मुफाद के लिए हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का PP 153 के दौरे के मौके पर सिंहपुरा में लीगी कारकुनान से मुलाकात की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि तमाम सियासी जमातें बाहमी मुशावरत से मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाईं। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इदारों की मजबूती पर मुनहसिर है। इस मौके पर मियां इमरान, ताहिर बशीर, मास्टर फयाज, मोहम्मद जावेद समेत दीगर भी मौजूद थे। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। IG का कहना है कि करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान और एहलकारों की पंजाब पुलिस में कोई जगह नहीं है। इजलास में पंजाब पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की असर-ए-नौ तश्कील, महकमाना एहतसाब का अमल मजीद तेज करने का फैसला किया गया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने नए तैनात होने वाले DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच को खुसूसी अहदाफ सौंप दिए। इंडस्ट्रीज को पानी के इस्तेमाल पर टैरिफ लगाने के लिए रेगुलेट किया जाए। पानी के बेदरेग इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है।
पंजाब वाटर रिसोर्सेज कमीशन का पहला इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ। वजीर आपाशी मोहसिन लगारी ने इजलास की सदारत की। इजलास में वजीर सनत तिजारत मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, मलिक असद अली खोकर, सेक्रेटरी आपाशी सैफ अंजुम, डीजी वाटर सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी आमिर खान ने शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजिरान मलिक मोहम्मद नईम की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर उस्मान मलिक से मुलाकात हुई। ईसी मेंबर को शाह आलम मार्केट से मुल्हिका मार्केट्स और तिजारती मराकज़ के मसाइल बारे आगाह किया गया। मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर उस्मान मलिक ने सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद नईम को शाह आलम मार्केट की ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम कैरियर काउंसलिंग और बैरून मुल्क रोजगार के मौक़ों पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार के मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अयाज हुसैन, डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर ताबिंदा दोगल, डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर राहत, डॉक्टर शफीक गुल, डॉक्टर रेहान सुहेल खान और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा टेली मेडिसिन को पंजाब भर के अस्पतालों के साथ लिंक करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 23वां कॉन्वोकेशन पहले रोज 943 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 216 पोजीशन होल्डर्स तलबा को मेडल से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 23वें कॉन्वोकेशन के पहले रोज के मेहमान खसूसी चांसलर यूनिवर्सिटीज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। 943 ग्रेजुएट्स तलबा को डिग्रियां दी गईं। 216 पोजीशन होल्डर्स तलबा को मेडल से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब ने आला तालीम के फरोग में यूसीपी के किरदार को सराहा। ये ग्रेजुएट वालदैन और असतिज़ा के लिए फ़ख्र, एजाज़ और खुशी का एक लम्हा है जिसमें सब ने अपना किरदार अदा किया और कामयाबी में अपना हिस्सा डाला। यहाँ आप सब ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ये कामयाबी हासिल की है। वहीं आपके असतिज़ा ने अपने बेलौस जज्बे और पेशा वराना महारत के साथ आपको मुतहर्रिक रखा और आपके वालदैन ने घर में साजगार माहौल की फराहमी के ज़रिए इस कामयाबी में आपकी मदद की। इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्रेजुएट्स तलबा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अपने इल्म और सलाहियतों को अमली मैदान में बुरवेकार लाएंगे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 4 इयर्स विद यूसीपी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे रहे, बहुत कोऑपरेटिव थे। फैकल्टी मेंबर्स बहुत हम्बल थे और इतने इंटेलेक्चुअल था कि पता ही नहीं चला कि 4 ईयर गुजर गए। तो थैंक यू टू यूसीपी एंड द मैनेजमेंट जिन्होंने इतने टफ टाइम में ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी सारे बच्चों को बुलाया है जो पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट भी आए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा दिन है लोगों के लिए। यूसीपी ने हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स दे दी हुई हैं जो हमारे आगे फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। कॉन्वोकेशन में प्रो रेक्टर यूसीपी प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम, मुख्तलिफ फैकल्टीज के डीन्स, प्रोफेसर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, तलबा और उनके वालदैन शरीक हुए। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा उस्मान महबूब गुराया, लाहौर। आर्मी मेडिकल कोर के ज़ेरे एहतमाम टैप पंजू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त मुआयना, इलाज और टेस्ट किए गए। पाक फौज के मेडिकल कोर के खुसूसी मेडिकल कैंप में आर्मी डॉक्टर्स और अलाइड स्टाफ ने 1200 मरीजों का मुआयना किया। आर्मी मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप में 300 मर्द, 370 खवातीन और 280 से जायद बच्चों का मुफ्त मुआयना किया गया और इलाज किया गया। आर्मी मेडिकल कोर की लैब ने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड CP, यूरिक एसिड के मुफ्त टेस्ट किए। गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल पाकिस्तान गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आगाज वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ऑर्गेनाइजर बास्केटबॉल टूर्नामेंट शाहिद मिर्जा, सेक्रेटरी लाहौर सैयद मधु जाफरी, एसोसिएट सेक्रेटरी मलिक एजाज भी मौके पर मौजूद रहे। टीम वापडा A, वापडा B, SA गार्डन और फ्रैंक 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने ऑर्गेनाइजर शाहिद मिर्जा की खवातीन को सपोर्ट के मैदान में सरगर्म करने की काविशों को सराहा।
کرکٹر بابر اعظم کی یتیم خانہ دارالشفقت آمد۔ چیئرمین سہیل محمود بٹ نے خوش آمدید کہا۔ کرکٹر بابر اعظم یتیم خانہ دارالشفقت پہنچے اور بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ بچے بابر اعظم کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر بابر اعظم نے بچوں میں شرٹس اور دیگر اشیاء تقسیم کی، جبکہ بچوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ بچوں نے بابر اعظم کے ساتھ سیلفیاں لیں۔ چیئرمین سہیل محمود بٹ نے بابر اعظم کو یتیم خانہ دارالشفقت کا وزٹ کرایا۔ شہر میں فش پوائنٹس کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ شہری سرد موسم میں مزیدار مچھلی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں پکی روہو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو ذائقے میں بھی لاجواب ہے اور جیب پہ بھی بھاری نہیں ہے۔ خوش خوراکی کے شوقین لاہوریے سرد شاموں میں مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج کل ہر علاقے اور چوراہے پر مچھلی کے سٹال سج چکے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں پکی روہو مچھلی کو خاصا پسند کیا جاتا ہے، جو سستی ہونے کے ساتھ ساتھ منہ کا ذائقہ بھی دوبالا کر دیتی ہے۔ ہم ننکانہ صاحب سے آیا ہوں میں، یہ دوست لاہور سے ہیں۔ ماشاءاللہ مچھلی بہت اچھی ہے ان کی۔ پہلے بھی میں اکثر آتا ہوں تو یہی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے مچھلی کھانی ہے۔ لاہور میں سردیوں میں جب بھی آنا ہوتا ہے تو یہ مسٹ ہوتا ہے۔ سردیوں کے حوالے سے یہ اچھا پوائنٹ ہے کھانے کا۔ ہم ننکانہ صاحب سے آئے، جب بھی ادھر آتے ہیں یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، سردیوں میں خاص کر جاتا ہے۔ 30 سال سے کھا رہے ہیں جی۔ اب یہ کہہ لیں کہ ہماری ساری فیملی کی بڑی فیوریٹ جگہ ہے کھانے کی، خاص طور پہ لاہوریوں کے لیے۔ مچھلی فروخت کرنے والے 4 ماہ کے سیزن میں سال بھر کی کمائی کر لیتے ہیں، اس لیے یہ منافع بخش کاروبار پھیلتا جا رہا ہے۔ لاہوریا کوئی مچھلی چھوڑ جائے دور ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اوپر سے دسمبر کا مہینہ ہو، 12واں مہینہ ہو تو سردیاں جیکٹیں باہر نکل آتی ہیں، تو مچھلی بھی نہیں انسان ایسے چھوڑتا جیسے جیکٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ شہر میں روہو مچھلی 700 روپے سے 1200 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے اور ہر فش پوائنٹ پر شہریوں کا رش ہے۔ سردیوں کے کھانوں میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی خوراک میں مچھلی سر فہرست ہے۔ کیمرہ مین فرحان انصاری کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔